Welcome back. I'm Dr. Hitesh Kumar Meena. Um, Yesterday we discussed about Robert K. Merton, and today we will discuss the concept and theories given by him. मैं डॉक्टर हितेश कुमार मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल हमने रॉबर्ट के मर्टन की जीवन यात्रा के बारे में समझा। आज हम उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट के मर्टन has provided so many theories, concepts, and has opinion about multiple existing issues or literature. But he was mainly known for 5 things. First, structural functionalism. Second, functional aspect of social system. Third, theory of deviant behavior. Some of the people call it strength theory. Fourth, middle range theory. Fifth, sociology of science. आर के मर्टन ने अपने जीवन काल में बहुत सारे समाजशास्त्र में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, लेकिन आर के मर्टन जिन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जाने जाते हैं वो हैं इस प्रकार है। पहला, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। द्वितीय, अपने पथ मार्ग से विचलन का सिद्धांत। तृतीय, मध्यम श्रेणी सिद्धांत। चतुर्थ, विज्ञान का समाजशास्त्र। और अंत में आता है प्रक्रियात्मक सिद्धांत। Today we will discuss 4 things: functional aspect, structural functionalism, strength theory, and basic understanding of middle range and sociology of science. Structural functionalism is mainly when you talk and discuss a society to understand the function of every single concept along with the as contribution in making the structure as a running or a complete unit, which we discussed in the earlier. So I am not going to in detail much. If you required any extra effort from my side for this particular topic, you can ask me in comment box. Structural functionalism और संरचनात्मक प्रकार्य सिद्धांत के अनुसार समाज में उपस्थित प्रत्येक संरचना का प्रत्येक हिस्सा एक कार्य करता है और वह कार्य उस संरचना को सरूप बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से कार्यरत रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में हमने विगत कई लेक्चर्स में अच्छे से कई संवाद में उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द्वितीय होता है फंक्शनल एस्पेक्ट। सेकंड इज द फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ आर के मर्टन इज a very major contribution, not from academic degrees, but at the same time from a UPSC, UGC NET or state services also. Functional aspect, he focused that every single structure in the society which perform some sort of the function, and it is required to maintain the social solidarity and unity and equilibrium in the system. But at the same time, these functions not always come in a very positive nature. Sometimes
they may be in a negative sense. प्रकारात्मक विश्लेषण में मर्टन साहब कहते हैं कि समाज की प्रत्येक संरचना और प्रत्येक अभिन्न अंग अपना एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और वो समाज को समरूप बनाए रखने के लिए उसके सुचारू रूप से विकसित बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज की प्रत्येक संरचना का कार्य एक सकारात्मक ही होता है। कई बार वो कार्य नकारात्मक भी हो सकते हैं, तो हमें उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नकारात्मक कार्यों को अवलोकन नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा समाज में एक लूप होल छोड़ सकते हैं, नेगेटिविटीज का राइज हो सकता है और आपके विकास का जो मार्ग है उसमें बाधित भी हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसका समझेंगे। फंक्शनल एस्पेक्ट का सबसे साधारण एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, करेक्शन सेंटर्स, जेल सुधार गृह। करेक्शन सेंटर्स का जो मुख्य कार्य है समाज में जो अपराधी हैं उनमें अपराध की भावना को कम करना और उन्हें समाज का एक जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करना। The functions of a correction centers is a major task that they should reform the criminals and they should relieve them from a criminal behavior attitude and make them a responsible citizen of the society. But is it only the task or function which have been happening in that? No. It is a larger task. But sometimes some negative function also take place within the correction center which can't be denied. Like development of nexus and becoming hardcore criminals. जेल सुधार गृह में क्या प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक जागरूक नागरिक बन के निकलता है और ये सिंपल एक ही कार्य होता है? तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। उन सुधार गृह में कई बार बहुत बड़े स्तर के जाल का निर्माण हो जाता है, आपराधिक संगठनों का निर्माण होता है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। कुछ लोग जो साधारण आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित थे वो एक महान और बड़े स्तर के क्रिमिनल बन जाते हैं, खूंखार आतंकवादी बनकर निकल जाते हैं। ये भी फंक्शन होता है, ये भी कार्य होते हैं। ये होते हैं डाइस फंक्शन, जिन्हें कहते हैं नकारात्मक कार्य। डाइस फंक्शन है नकारात्मक कार्य is always leading the negative side of the function which have been performed. It is not intended. It is not outcome of any policy implemented, but it is outcome of some loopholes, some of the avoidance and mistaken done by the system. जो कार्य होते हैं नकारात्मक कार्य, ये कोई चला के नहीं करवाए जाते, ये समाज के द्वारा कुछ चीज़ों का अवलोकन पूर्ण रूप से ना करना, उन्हें अवॉइड कर देने की वजह से उत्पन्न होते हैं। फंक्शन not only can be function or dysfunction, sometimes it hidden function. Hidden function, correction centers not only make him a responsible citizen, aware person, but at the same time they provide him some life skills. They provide him education. And we have so many examples that so many people have done a wonderful job in academia or in a entrepreneurship being in a correction centers.
that is hidden function, which is not a major task of that correction center, but they are performing it to achieve their major task of function. कई बार कई संस्थानें ऐसे कार्य भी करती हैं जो उनके मुख्य कार्य ना हो के गुप्त कार्य होते हैं, लेकिन वो गुप्त कार्य उनके मुख्य कार्य को प्राप्त करने का माध्यम जरूर बन सकते हैं, जिसके लिए हम जेल सुधार गृह में कई बार हमने देखा है कुछ व्यक्ति शिक्षा के जगत में, व्यावसायिक जगत में अपना नाम बहुत अच्छे से रोशन करते हैं। ये जेल सुधार गृह का कोई मुख्य कार्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को समाज का जागरूक और एक मुख्य नागरिक बनाए रखने के लिए एक माध्यम हो सकता है, और जिसे वो अच्छे से निर्वहन करते हैं। हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट है विच विल डिस्कस रिलेटेड टू आर.के. मर्टन, दैट इज स्ट्रेंथ थ्योरी, दैट इज कन्फर्मिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिविएंस। हमारा जो तीसरा कंसेप्ट जिसे हम आज डिस्कस करेंगे मर्टन साहब से संबंधित है, वो है पथ विचलन का सिद्धांत। That concept of deviance is taken from statistics studies. The पथ विचलन का सिद्धांत है वो सांख्यिकी विभाग से और सांख्यिकी अध्ययन से लिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा सांख्यिकी अध्ययन में जब भी कोई डेटा कलेक्शन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि किस प्रकार एक यूनिट दूसरे यूनिट से डिफरेंस कितने डिस्टेंस पर मेजर की जा रही हैं। उसी प्रकार से मर्टन साहब विज्ञान के समाजशास्त्र में बहुत अधिक रुचि रखने के कारण उन्होंने ये सिद्धांत वहाँ से लेकर समाजशास्त्र में इसका एक अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उन्होंने डिविएंस पे नहीं, डिविएंट बिहेवियर पर कितना उसका जो कार्य है वो पथ विचलित है। The concept of deviant is taken from a static studies that how one unit is differentiated or far away from actual units, and that should be measured. As Merton, Robert K. Merton is himself is too much interested in sociology of science, so he developed the concept of theory of deviant behavior from taking the idea of deviant from the static study. In theory of deviant, he focused on 5 terms. First, conformity. Second, ritualistic. Third, retreat, rebellion, and innovation. The 5 different concepts we have discussed. मर्टन साहब ने 5 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताया, ऐसी गतिविधियां बताई जिनके माध्यम से आप ये निर्धारण कर सकें कि व्यक्ति का जो व्यवहार है समाज में वो अपने मुख्य कार्य से कितना विचलित है। तो उन्होंने 5 प्रकार के बताए। कन्फर्मिटी, जो हर कार्य को कन्फर्मिटी है। दूसरा इनोवेशन है। तीसरा रिचुअल है। चतुर्थ रिट्रीट है। 5वां रिबेलियन है। Conformity is talked and discussed about those concepts or those persons who work and always make sure confirm the goals and means provided by the society. Conformity में जो व्यक्ति समाज के द्वारा गए आपके गोल, जो आपका टारगेट है, आपका जिसको आपको अचीव करना है उसे, और जो उसके लिए मार्ग बताया गया, आप उन दोनों को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, उन्हें उनका अनुसरण करते हैं, उसके मार्ग पे बढ़ते हैं। दूसरा है
इनोवेशन। इनोवेशन में व्यक्ति व्हाट ही डज, goal is always fixed that I have to achieve this particular goal, but he choose the means as per his choice. Example, society makes sure that every single student should get good marks and good write up in the exams. The means which has been discussed that they should not do any kind of cheating, unfair means and everything. But as we see in the latest, the things is still practicing going on. SI exam. Some of the people become SI. They achieve the goal which is defined by the society that you should become get a respected job and earn the respect. But what are the mean they which is use is correct? No. They done the cheatings. They innovate the means as per their interest. They bypass and purchase the paper, whatever it is. इनोवेशन में व्यक्ति समाज के द्वारा गए अपने अचीव के गोल को तो ध्यान में रखता है और उसे करता भी है, लेकिन उसके लिए जो मार्ग बताया गया उसको अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, जो अभी पिछले कुछ दिनों में एसआई भर्ती को लेकर जो मामला चल रहा है, उसमें उन सभी व्यक्तियों ने समाज के द्वारा बताए गए मार्ग कि आपको एसआई भर्ती में अच्छे नंबर लाने हैं, वो उन्होंने पूर्ण रूप से किया। लेकिन क्या उन्होंने माध्यम वही अपनाया जो समाज ने बताया था? नहीं, उन्होंने पेपर खरीदना, चीटिंग करना और बिकम एसआई। थर्ड है रिचुअलिज्म। Ritualism talked about those person who focus too much on the following of the rituals defined by the society. They forget all other things, but they should always keep in mind, no, ritual should be fulfilled accordingly, and they forget that target is achieved to goal here also. Example, one person met with an accident, on a road accident, and you took him to hospital. The idea is to save the life of that particular person, but sometime medical staff says no, you need to call the police, you need to do all the paperwork first, then we will able to start the process of treatment. रिचुअलिज्म में वो व्यक्ति अपने जो मार्ग को इतना ज़्यादा सटीक रूप से चिपक जाता है कि वो अपना गोल ही भूल जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा कि एक व्यक्ति का कार रोड सड़क पे दुर्घटना हो गई है, आप उसे लेके अस्पताल चले गए। आपने जाकर वहाँ पे चिकित्सक से और मेडिकल स्टाफ से बात करी कि इसका आप इलाज कर दीजिए। अब वहाँ जो उपस्थित मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर से, कह रहे नहीं, पहले आपको इनका पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा, पुलिस को सूचना दीजिए, मीडिया को बुलाइए, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और अपना ये पहले जो पेपर वर्क है ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में हम आपका पेशेंट को देखेंगे। अगर इस सारे कार्य में उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो क्या ऑब्जेक्ट फुलफिल हुआ हॉस्पिटल का, डॉक्टर्स का और आपका? नहीं, क्योंकि अस्पताल का कार्य था ना कि उस इंसान की जान बचाना, बट वो तो भूल ही गया था वो व्यक्ति जो भी वहां पे उस वक्त उपस्थित रहा होगा। लेकिन वो पेपर वर्क उन्होंने पूरा किया, वो भी गलत नहीं थे, लेकिन वो पेपर वर्क में इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपना मेजर टास्क ही भूल जाते हैं, अपना गोल ही भूल गए। तो ये होते हैं रिचुअलिज्म। फोर्थ इज अ रिट्रीट। दोज पीपल वो स्टार्ट the journey with the full energy, and in the middle they forget the goal and the means both and change and settle down there. Retreat to focus on those people जो व्यक्ति अपना कार्य की शुरुआत बहुत क्षमता से और बहुत जुझारू रूप से करते हैं, लेकिन मध्य में जाते जाते
अपना माध्यम भी भूल जाते हैं, अपना गोल भी भूल जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं. एग्जाम्पल, एन स्टूडेंट, a person who taken admission in IIT or IIM or AIMS or major institute. It is a major path of success given by defined by society. But that person, after taking admission in higher education institutions, he start taking drugs and is not able to fulfill either his means or object. He is not able to get the degree, not is able to appear in the exams. एक व्यक्ति जो समाज के द्वारा बताए गए मुख्य संस्थानों में, आईआईटी में, एम्स में, आईआईएम में एडमिशन तो ले लेता है बहुत मेहनत करके, लेकिन वहां जाकर अगर वो नशे की लत में पूर्ण रूप से मद हो जाता है तो वो व्यक्ति ना तो वहां से अपनी डिग्री ले पाएगा, मनार डिग्री उपाधि को ले पाएगा, ना ही वो व्यक्ति कभी किसी एग्जाम में, परीक्षा में या कुछ सीख पाएगा. वो मार्ग में ही पथ विचलित हो जाता है. तो दोज पीपल वो फॉरगेट द मीन्स एंड गोल एंड स्टार्ट डूइंग सम अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी नॉट इवन रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ और देयर सोसाइटी इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट. कुछ नहीं होगा, मतलब बीच में से रास्ते से मुड़ गए हम अपनी तरफ जहां भी मुड़ने थे. कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन चले गए. लास्ट वन, रिबेलियन, विद्रोह. रिबेलियन, व्हाट दे डू, दे रिजेक्ट बोथ द ऑब्जेक्ट, गोल एंड मीन्स एंड डेवलप देयर ओन मीन्स एंड गोल. विद्रोही समाज के संस्था के द्वारा बताए गए माध्यम को, पथ को और जो उनका गोल है, उन दोनों को उड़ा के अपना ही नया बना लेते हैं दोनों. उदाहरण, आजादी के वीर दीवाने भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अमृता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब रिबेलियन है. उस जमाने में जो मार्ग बताया गया ब्रिटिश कंपनी के द्वारा कि आप सोसाइटी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स को फॉलो करो, जो वो काम बता रहे हैं वो करो, शांति से बैठे रहो, लेकिन उन्होंने उस माध्यम को भी उड़ा दिया. गोल था कि उस जमाने में वो अच्छी खासी बैरिस्टर की जॉब करते या कहीं पे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन के, कहीं ब्रिटिश कंपनी के स्पोक्स पर्सन बन के काम करते. उन्होंने वो भी उड़ा दिया. उन्होंने अपना ही मार्ग बनाया, आज़ादी का मार्ग. उन्होंने उसमें अपनी, वो उनका गोल था आज़ादी देश की. मार्ग उन्होंने सॉफ्ट, हार्ड और ब्लड शेड, वायलेंस, नॉन वायलेंस दोनों अडॉप्ट किए. दैट इज रिबेलियन. Last one is the middle range theory. Middle range theory talked about that when you are talking and discussing the grand theories which are discussed given by the earlier thinkers, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, they are not able to make the sense to people or provide some basic solution on the daily basis. तो आप एक छोटे समूह के अध्ययन करके उनका संबंधित डेटा कलेक्ट करके कुछ न्यू कंसेप्ट को कुछ डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. मिडल रेंज थ्योरी टॉक्ड अबाउट व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग इन अ वेरी एक्सट्रीम पोलर, ऑन अ extremely broad or very minor, but you are talking in a middle sense. You done the survey on a very small size scale group, focus group, and collect the data, and on the basis of that generalize the solution of the problem which you have discussed. Sociology of science is a very simple, as we know discuss ki not that much on the daily basis use. So in a sociology of science, Merton given a term CUDOS, kudos. तो C का मतलब stand for communism, when ownership of the scientific discovery is shared by everyone. U, universal, shared principle
That where truth claim that is a universal in nature. Third, D stand for disinterestedness. Scientists are not interested कि भाई आप क्या करते हैं, what are you doing and not, and they do what according to whatever they are achieving through their discoveries, and they were happy with that. They are not that much daily basis related to society. No, I will go and talk about it. They make their discoveries and keep working on their lab. O, organized spectivism. All idea and truth claimed require testing and subject to meticulous scrutiny by scientific community. जो OS था लास्ट वाला, वो स्टैंड करता है, जो पहला C है वो कम्युनिज्म पे स्टैंड करता है. कम्युनिज्म का मतलब जो भी वैज्ञानिकों ने खोज करी है वो समाज में सभी बराबर, सबके लिए समान रूप से है और हर व्यक्ति का अपना उस पर अधिकार है. दूसरा U, यूनिवर्सलिज्म, वैश्वीकरण, जिसके अंदर बताया, वैश्विक जगत में बताया जाता है कि जो भी उन्होंने सच डिस्कवरी करी वो सब सच है और वो सभी के बराबर ये समान है. उसमें किसी व्यक्ति का एक कोई मुख्य वो नहीं है. थर्ड, डी जो था डिसइंटरेस्टेडनेस, उसकी बात करते हैं मतलब कि उनको लगाव नहीं है. वैज्ञानिक अपनी लैब में अपना काम करता है और अपने अनुरूप बढ़ता रहता है. जो लास्ट का ओएस था वो ऑर्गेनाइज स्केप्टिविज्म, जिसमें वो वैज्ञानिक अभी खोज करी, वो अब ओपन है पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए कि आप मेरी इस खोज को वापस से चेक कर सकते हैं, अपनी लैब में टेस्ट कर सकते हैं, कुछ समस्या तो आप मुझे बता सकते हैं. धन्यवाद. आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है. टुडे वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर बुक इटसेल्फ एंड थैंक्स. Don't forget to like, share and subscribe my channel, and if you have any comment, ask me in the comment box. Thank you everyone.